हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडिडेटर टाइप के बारे में। टाइप ए, बी, सी, डी, ई, ऑल इंडिया कैंडिडेटर, ओएमएस, माइनॉरिटी कैंडिडेट, एनआरआई कैंडिडेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट मिल रहे हैं रिगार्डिंग कैंडिडेटर टाइप एंड स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज है। कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए गाइस स्टे कनेक्टेड विद अस टिल द एंड इन दिस वीडियो। हम इन डिटेल बात करने वाले हैं कैंडिडेटर टाइप के बारे में सो दैट आपके सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए एंड देन यू कैन ईजिली डिसाइड कि आप किस कैंडिडेटर टाइप में फॉलो हो रहे हो, ए, बी, सी, डी, ई और ऑल इंडिया कैंडिडेटर। तो हम इन सारे कैंडिडेट टाइप्स के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। So let's begin guys with the first candidator type, which is Maharashtra state candidator type A. Here it says a candidate who is domicile of Maharashtra, meaning आपके पास domicile certificate होना चाहिए from the state of Maharashtra या फिर आपके पास birth certificate होना चाहिए जिसमें आपकी प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुंबई महाराष्ट्र, मीनिंग mentioning the place of birth which is in Maharashtra. Now what this means, if candidate has completed his or her SSC or HSC or equivalent qualification examination from the state of Maharashtra but are not born in Maharashtra, or candidate does not possess the domicile certificate from the state of Maharashtra, meaning अगर आपने आपका एसएससी एंड एचएससी और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन महाराष्ट्र स्टेट से कंप्लीट किया है बट आप महाराष्ट्र स्टेट में बॉर्न नहीं हुए हो और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, देन सच कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटर टाइप ए। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दैट यू शुड हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट मेंशनिंग द प्लेस ऑफ बर्थ विच इज़ इन महाराष्ट्र एंड यू शुड हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपको कैंडिडेट ए में आना है तो ओनली देन यू आर टाइप ए कैंडिडेट। सो if you are not born in Maharashtra or you do not have any domicile certificate from the state of Maharashtra, then such candidates are not eligible for state candidator type A. Then they should fill the CD application form as outside Maharashtra state candidate type, meaning you will fall under the OMS category which is outside Maharashtra student, that is all India candidator type. If candidate has completed his or her SSC or HSC or equivalent qualifying examination from the state of Maharashtra and are not born in Maharashtra, but candidate has a domicile certificate from the state of Maharashtra, meaning आपने आपका SSC and HSC महाराष्ट्र से कंप्लीट किया है एंड यू आर नॉट बॉर्न इन महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र में बॉर्न नहीं हुए हो बट आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, देन यू आर एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटर टाइप, देन यू शुड फिल सीटी एप्लीकेशन फॉर्म as Maharashtra state candidator type A. Next, candidates who are born in Maharashtra or candidates having the domicile certificate from Maharashtra state but have not completed his or her SSC or HSC or equivalent qualifying examination from the state of Maharashtra, meaning अगर आप महाराष्ट्र में बॉर्न हुए हो एंड आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बट आपकी क्वालिफिकेशन विच इज़ एसएससी एंड एचएससी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से कंप्लीट नहीं हुई है, देन सच कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट टाइप कैंडिडेटर ए. Then what they have to do is they should fill the CT application form as an outside Maharashtra state candidator, meaning OMS type, that is all India candidator type. Next, Maharashtra state candidator type B. Here it says the father or mother of the candidate is domicile in the state of Maharashtra. Either father or mother of the candidate should have a domicile certificate from the state of Maharashtra if candidate is not born in Maharashtra or does not possess a domicile certificate from Maharashtra, meaning
आपके फादर या मदर के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र होना चाहिए अगर आप बॉर्न इन महाराष्ट्र नहीं हो तो, या फिर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। मीनिंग, if candidate has not completed his or her SSC or HSC or equivalent qualifying examination from the state of Maharashtra, then such candidates are not eligible for Maharashtra state candidate type B, though candidate's father or mother possesses the domicile certificate from the state of Maharashtra. Meaning, अगर आपने आपका SSC HSC इक्वलेंट क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से कंप्लीट नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप बी, इवन इफ़ आपके फादर और मदर के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, देन टू यू आर नॉट एलिजिबल. Then what they can do is they should fill CT application form as an outside Maharashtra state candidate type, that is all India candidate type. Next, if candidate has completed SSC and HSC from the state of Maharashtra and candidate does not possess domicile certificate from the state of Maharashtra or birth certificate from the state of Maharashtra, but candidate's father or mother possesses domicile certificate from the state of Maharashtra, then such candidates are eligible for Maharashtra state candidate type B. Meaning, अगर आपने आपका SSC एंड HSC कंप्लीट किया है फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बट आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नहीं है, बट आपके फादर और मदर के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, देन सच कैंडिडेट्स, मीनिंग you are eligible for Maharashtra state candidate type B, then such candidate should fill the CT application form as Maharashtra state candidate type. Then only you fall under Maharashtra state candidate type B. Next, Maharashtra state candidate type C. Here it says the father or mother of the candidate is an employee of the government of India or government of India undertaking who is posted and reported to the duty in the Maharashtra state before the last date of submitting the application form for the CAP, provided candidate should have completed his or her SSC and HSC from the state of Maharashtra. Meaning, आपके father or mother should be an employee of government of India और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, बट उनकी पोस्टिंग एंड ड्यूटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र होनी चाहिए बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैप राउंड, बट स्टिल स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड SSC और HSC फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. स्टिल आपका क्वालिफिकेशन विच इज़ SSC और HSC महाराष्ट्र स्टेट से कंप्लीट होना चाहिए. नाउ व्हाट दिस मीन्स इज़, if candidate has not completed his or her SSC or HSC or equivalent qualifying examination from the state of Maharashtra, then such candidates are not eligible for Maharashtra state candidate type C. As we discussed earlier, यहाँ पे mention किया है provided candidate should have completed his or her SSC or HSC from the state of Maharashtra even if their father or mother are working for government of India or they are employee of the government of India. But if your qualification which is SSC and HSC is not completed from the state of Maharashtra, then you are not eligible for Maharashtra state candidate type C. Then what they can do is they should fill CT application form as an outside Maharashtra state candidate, which is OMS, meaning all India candidate type. ऑल इंडिया कैंडिडेट टाइप के भी बारे में हम आगे जानेंगे, सो गाइज वीडियो एंड तक देखना. नेक्स्ट, इफ कैंडिडेट हैज़ कंप्लीटेड हिज और हर SSC और HSC और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मीनिंग आपने आपकी क्वालिफिकेशन SSC एंड HSC महाराष्ट्र से कंप्लीट की है एंड आपके फादर और मदर एम्प्लॉय है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग,
और उनकी पोस्टिंग एंड रिपोर्टिंग टू द ड्यूटी महाराष्ट्र स्टेट में होनी चाहिए कैप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटिंग की लास्ट डेट से भी पहले. देन ओनली you are eligible for Maharashtra state candidate type C. Then they should fill CET application form as a Maharashtra state candidate type C. Next, Maharashtra state candidate type D. Here it says the father or mother of the candidate is an employee of the government of Maharashtra और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग. अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना गाइस. प्रीवियस में हमने देखा कैंडिडेट टाइप सी में यहाँ पर आपके फादर और मदर एम्प्लॉय होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग. बट in case of Maharashtra state candidate at type D, the father of or mother of the candidate is an employee of the government of Maharashtra or government of Maharashtra undertaking. Provided again आपने आपका SSC and HSC और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से कंप्लीट होना चाहिए. नाउ व्हाट दिस मीन्स, if the candidate has not completed his or her SSC or HSC or equivalent qualifying examination from the state of Maharashtra, which is clearly mentioned that candidate should have completed for his or her SSC or HSC or equivalent from qualifying examination from the state of Maharashtra, then only they are eligible for Maharashtra state candidate type D. But आपका अगर qualification which is SSC and HSC और equivalent qualifying examination state of Maharashtra से complete नहीं हुआ है, then you are not eligible for Maharashtra state candidate type D. Then what you all can do is they should fill CET application form as an outside Maharashtra state candidate, which is OMS students, which is all India candidate type. Next, if the candidate has completed his or her SSC or HSC or equivalent qualifying examination, मीनिंग आपने आपका SSC एंड HSC स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से कंप्लीट किया है एंड आपके फादर और मदर एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग, तो आप एलिजिबल होते हो फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप डी. देन व्हाट यू ऑल कैन डू इज़ आप CET एप्लीकेशन फॉर्म एज अ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप फिल कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ Maharashtra state candidate type E. Here it says the candidates passing SSC and or HSC examination or equivalent from a recognized institution from a disputed Maharashtra Karnataka border area and whose mother tongue is Marathi, then you all are considered as Maharashtra state candidate type E. मीनिंग अगर आपने आपका SSC एंड HSC और इक्वलेंट एग्जामिनेशन पास किया है फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अ डिस्प्यूटेड महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर स्टेट एरिया, बट आपकी मदर टंग मराठी होनी चाहिए. ये चीज़ आपके बर्थ सर्टिफिकेट में मेंशन होती है विच इज़ द मदर टंग. एंड अगर आपकी मदर टंग मराठी है देन आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप ई में फॉल होते हो. नाउ व्हाट दिस मीन्स इज द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड SSC and HSC examination or equivalent qualifying examination from a recognized institution from a disputed Maharashtra Karnataka border and whose mother tongue is not Marathi. मतलब अगर आपने आपके SSC and HSC examination और equivalent qualification महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से कंप्लीट नहीं की है और आपकी मदर टंग मराठी नहीं है, देन आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप में काउंट होते हो. मतलब आपको CET एप्लीकेशन फॉर्म एज एन आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप फिल करना होगा विच इज़ ऑल इंडिया कैंडिडेट टाइप. नेक्स्ट इज ऑल इंडिया कैंडिडेटर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप. हियर इट सेज द कैंडिडेट्स हैविंग इंडियन नेशनैलिटी आर एलिजिबल अंडर दिस कैटेगरी. Candidates should have domicile certificate from the state where the candidate belongs or candidate should have a birth certificate issued by the respective state. Meaning आपके पास इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए
और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इशूड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. Then you fall under this category, which is outside Maharashtra state candidature type, which means आप CET application form in open category fill करने वाले हो and आपका candidature type होने वाला है All India Candidator. Now what this means is candidates who have completed their SSC and HSC or equivalent qualifying examination from outside Maharashtra state and are born outside Maharashtra and having a birth certificate issued by the respective state government or they possess a domicile certificate from the respective state come under All India Candidate category. मीनिंग आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, या फिर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट. देन ओनली यू ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटर टाइप. Next, candidates who have completed their SSC and HSC or equivalent qualifying examination from outside Maharashtra state but born in Maharashtra and are having birth certificate issued by the government of Maharashtra or they possess a domicile certificate from the government of Maharashtra state. Meaning all the students, those who have completed their SSC एन HSC और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन आउटसाइड महाराष्ट्र, आपने आपका क्वालिफिकेशन किसी भी आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट से कंप्लीट किया है बट यू आर बॉर्न इन महाराष्ट्र और आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी महाराष्ट्र का है एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इशू किया गया आपको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से, देन अगेन यू कम अंडर ऑल इंडिया कैंडिडेटर टाइप, दैट इज आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटर टाइप. नेक्स्ट, candidates who have completed their SSC and HSC or equivalent qualifying examination from the state of Maharashtra. Meaning जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना SSC and HSC और equivalent qualifying examination state of महाराष्ट्र से complete किया है but they are not born in Maharashtra, meaning उनके पास महाराष्ट्र से इशू किया गया बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं है, दे कम अंडर ऑल इंडिया कैंडिडेटर टाइप. मीनिंग आप फॉलो होते हो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटर टाइप में. नेक्स्ट इज माइनॉरिटी कैंडिडेटर. हियर इट सेज द महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रॉम विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र and as notified by the government are eligible under this category. Those candidates who are claiming minority candidature, such candidates should have completed their SSC and HSC or equivalent qualifying examination from the state of Maharashtra and they should have a domicile certificate from the state of Maharashtra, otherwise they cannot claim for minority candidature. मीनिंग जिन भी स्टूडेंट्स के पास महाराष्ट्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट है बट वो किसी पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं विद इन महाराष्ट्र स्टेट, देन यू फॉल अंडर द माइनॉरिटी कैंडिडेटर कैटेगरी. बट जो भी स्टूडेंट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि वो माइनॉरिटी कैंडिडेटर टाइप में आते हैं उनके पास उन सारे स्टूडेंट्स का SSC एंड HSC और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से कंप्लीट होना चाहिए और उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है देन आप माइनॉरिटी कैंडिडेटर के लिए क्लेम नहीं कर सकते. नेक्स्ट, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस माइनॉरिटी कैंडिडेटर. Outside Maharashtra state, that is OMS, All India Candidator candidates should fill the CET application form in open category. Meaning अगर आप किसी माइनॉरिटी कैंडिडेटर में आते हो बट आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो विच इज़ आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, देन आप माइनॉरिटी कैंडिडेटर के लिए एलिजिबल नहीं हो. आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स OMS शुड फिल द CET एप्लीकेशन इन ओपन कैटेगरी. अगर आप किसी माइनॉरिटी कैंडिडेट में फॉल हो रहे हो बट आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आपको ओपन कैटेगरी में CET का फॉर्म फिल करना है. नेक्स्ट इज NRI कैंडिडेटर.
Here it says NRI candidates are exempted from CET. They need not to apply for CET examination, but what they can do is आप लोग डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो फॉर कैप राउंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सीईटी एग्जामिनेशन. जब सीईटी एग्जाम खत्म हो जाता है एंड देन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, देन यू ऑल कैन डायरेक्टली रजिस्टर फॉर द कैप राउंड एंड दिस वे यू ऑल फॉल अंडर द एनआरआई कैंडिडेट. सो एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए सीईटी लिखना मैंडेटरी नहीं है. व्हाट दे कैन डू इज सीईटी का एग्जाम खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, दे कैन डायरेक्टली रजिस्टर फॉर द कैप राउंड प्रोसेस एंड दे कैन फिल द फॉर्म अंडर द एनआरआई कैंडिडेट टाइप. नेक्स्ट इज फॉरेन स्टूडेंट्स और ओसीआई और पीआईओ कैंडिडेट. अगेन द सेम, फॉरेन स्टूडेंट्स और OCI और PIO कैंडिडेट और कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CET. आप लोगों को CET एग्ज़ाम लिखना मैंडेटरी नहीं है. व्हाट यू ऑल कैन डू इज़ आप डायरेक्टली कैप राउंड के लिए रजिस्टर कर सकते हो CET एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद एंड रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद. एंड यू ऑल कैन फिल द फॉर्म अंडर फॉरेन स्टूडेंट्स और OCI और PIO कैटेगरी कैंडिडेटर. नेक्स्ट इज Jammu and Kashmir migrant candidator. Here it says those students जो जम्मू एंड कश्मीर से शिफ्ट हुए हैं टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू अ रिलेटिवली सेफर प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम अनसेफ बॉर्डर एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1990 ऑनवर्ड्स, किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से, या फिर वो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS और इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS और इंडियन फॉरेन सर्विसेज IFS में एम्प्लॉयड है, एंड चिल्ड्रन ऑफ स्टाफ बिलोंगिंग टू मिलिट्री एंड पार्लियामेंट्री फोर्सेस, या फिर आपके पेरेंट मिलिट्री और पार्लियामेंट्री फोर्सेस से है हु आर ट्रांसफर्ड टू जम्मू एंड कश्मीर टू कॉम्बैट terrorist activities and join the post on or before the last date of submission, meaning उनकी ड्यूटी आपके CET एप्लीकेशन से पहले या फिर CET एप्लीकेशन के लास्ट डेट के बाद हुई है, या फिर द चिल्ड्रन ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ऑफिसर्स या स्टाफ में एम्प्लॉयड है एंड दोज हु आर एंगेज्ड इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म आर एलिजिबल अंडर दिस कैटेगरी. देन ओनली सच स्टूडेंट्स आर एलिजिबल इन जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कैंडिडेटर. सो आई होप गाइज सारे कैंडिडेटर टाइप्स को लेकर अब आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आर कैंडिडेट टाइप A, B, C, D, E एंड अदर्स. आई होप कि आपके सारे डाउट्स अब यहाँ तक क्लियर हो गए हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है गाइज, तो आप हमारे कैप राउंड के नंबर पे कॉल करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो या आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो. विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू. एंड गाइज, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखना है, सो आपके रिलेवेंट कोर्स में ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का नोटिस दिया गया है, आप राइट साइड पे जाके क्लिक कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस, आई विल ट्राई टू लिंक दिस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इन द डिस्क्रिप्शन. आप वहाँ से जाके भी कैंडिडेट टाइप के बारे में पढ़ सकते हो. सो येस गाइज, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड मेक श्योर कि आप ये वीडियो आपके सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब मेन्यूवर लॉ एंट्रेंस चैनल. और अगर आप ये वीडियो मेन्यूवर एजुकेशन पे देख रहे हो, सो मेन्यूवर लॉ एंट्रेंस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. मेक श्योर टू सब्सक्राइब दैट चैनल. एंड यस गाइज, आगे और सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी वीडियोज़ आने वाले हैं. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड यस गाइज, until then, see you in the next video. All the cap round process, cap round related videos will be available only on Menuware channel. सो गाइज, चैनल के साथ कनेक्टेड रहना. सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले यहाँ मिलने वाले हैं. विल बी कवरिंग ऑल द अपडेट्स. हम यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं. देव सर विल बी टेकिंग यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स. सो येस गाइज, आपको एंटायर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. आपके कट ऑफ्स के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट रिलेटेड डाउट्स. ऑल्सो गाइज, स्टेप बाय स्टेप कैप राउंड प्रोसेस है, आप कह सकते हो एडमिशन प्रोसेस पे वीडियोस आपको एक्सक्लूसिवली मेन्यूवर चैनल पर मिलेंगे. सो मेक श्योर गाइज टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस
चैनल लिंक विथ योर फ्रेंड्स, सो उनको भी बहुत हेल्प होने वाला है इससे। ऑल्सो गाइस कट ऑफ के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, कट ऑफ वर्सेस कॉलेजेस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाली है। फ्री करियर कॉलेज लो स्कोर कंसल्टिंग भी आपको मिलने वाली है। आप ये इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। विल बी हेल्पिंग यू विद द कैप राउंड प्रोसेस। ऑल्सो यू ऑल विल बी गेटिंग फ्री कैप राउंड related guidance. So yes, make sure to subscribe this channel for all the related videos and for cap round related videos. Also make sure to join our telegram channel as well, वहाँ पे हम सारे updates भी share करने वाले हैं guys. So yes, all these features will be getting only if you subscribe our channel. And for any doubt and query, you can call on 7219040 इस नंबर पे आपको कॉल करना है कैप राउंड रिलेटेड डाउट्स के लिए। कैप राउंड प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग भी होने वाली है गाइस, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल।